All I wanted to do was be with my friends. और जो मैं यही करना चाहती थी कि मेरे स्कूल के दोस्तों के साथ ही मैं रहना चाहती थी। And then came a time during my final terms. और ऐसा एक समय आया मेरे परीक्षा के समय, Someone in the school spread rumors about me. और स्कूल में किसी ने तो मेरे बारे में कुछ ऐसी बातें फैलाई, That's when I came to know who the real people are in my life. और तब मुझे पता चला कि कौन लोग हैं, सच्चे लोग हैं जिनके साथ मुझे रहना चाहिए। As I used to walk in the corridors of the school, जब मैं स्कूल के कॉरिडोर में चला करती थी, I used to see all the people's eyes on me, whispering, gossiping about me, और मैं देखती थी कि सब लोग मुझे देखकर फुसफुसा रहे हैं, बातें कर रहे हैं मेरे बारे में and आपस which में। and which I clearly knew that I didn't do anything, but still people are talking, which made me really angry. और मैं जानती थी कि मैंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया है, फिर भी लोग मेरे बारे में गलत बोल रहे थे, जिसके कारण मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। I went to my friends and I was like, we need to take revenge. Let's pull a prank. Let's put that person in trouble who did this rumor about me. और मैंने अपने दोस्तों से जाके कह रही थी कि मुझे बदला लेना चाहिए, हमें मिलकर जो है उसको मुसीबत में डालना चाहिए, उस व्यक्ति को जिसने मेरा नाम खराब किया है। And that's when the closest person to me said, how do we know what they said is true or not? तो और एक मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि जो जो उन्होंने बोला है वो सही है या नहीं, हमें कैसे पता चलेगा। And that's when I was like, oh, you're the person who know me the most, and I don't expect you to tell me this. तो और तब मैंने उससे कहा कि तुम ऐसे व्यक्ति हो जो मुझे सबसे बेहतर रूप से मुझे जानते हो, और मैंने आपसे इस बात की अपेक्षा नहीं की थी। And I came home. My mom was called in the father's office, principal's office. तो और मैं अपने घर आई और मेरे माँ को मेरे प्रिंसिपल ने बुलाया। I was suspended from school स्कूल से मुझे सस्पेंड किया गया for a few days. कुछ दिनों के लिए। And I came home and I went in my washroom. मैं घर आई, मेरे वॉशरूम में गई, I sat down and I started crying, saying, God, what have I done? और मैं वहाँ पे बैठ के रोने लगी, ये बोलते हुए कि परमेश्वर, ये मैंने क्या कर दिया। My name has been spoiled in my town. और मेरा नाम मेरे शहर में खराब हो गया है। I'm a child of God, but with my name, I have even spoiled your name as well. अब मैं परमेश्वर की बेटी हूँ और मेरे नाम के साथ साथ मैंने परमेश्वर का नाम भी खराब किया है। There was the bottle of floor cleaner, phenyl. फिनाइल की बोतल पड़ी थी वहाँ पर। I got a voice inside me, just go drink it, finish it. You've been called characterless. Your name has been spoiled. You don't have the right to live. और मेरे अंदर एक आवाज़ आई कि वो फिनाइल की बोतल को देख के कि जाके वो पी लो, क्योंकि अभी तुम्हारा नाम बहुत खराब हो गया है, तुम चरित्रहीन हो गई हो। That's when I sat down and I got a voice from me that I am here. और तभी मुझे एक आवाज़ आई कि मैं यहाँ पर हूँ। I just opened my Instagram randomly और मेरा इंस्टाग्राम मैंने खोला उस समय, and I got this word और मुझे एक वचन मिला वहाँ पे from Psalms 118, भजन संहिता 118 में, verse 8. भजन संहिता 118 अध्याय और 8वां वचन। It is better to take refuge in the Lord than to trust in humans. परमेश्वर में शरण लेना लोगों पर भरोसा रखने से अच्छा है। And I felt this guilt in my body, like I left God, I disappointed him, but when I needed him the most, he held my hand. और मुझे ये अपने अंदर एक अपराध बोध महसूस होने लगा कि मैंने परमेश्वर को धोखा दिया उसको, लेकिन फिर भी जब मुझे ज़रूरत थी परमेश्वर मेरे साथ था। I prayed and I walked back into that school. मैंने प्रार्थना की और फिर से मैं स्कूल जाने लगी। This time not my head's down and hiding from people, इस बार मेरा सिर नीचे झुका हुआ नहीं था और मैं But- लोगों से छिप नहीं रही थी, but carrying the praise and the confidence of God in me and walking. अब परमेश्वर का जो साथ हमें मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस लेके मैं चल रही थी। And I confronted everyone in the school that whatever the rumor is about me, it is wrong. And God spoke into that person's heart, and he came up and
he confessed that whatever he spoke about me was wrong. और मैंने जाके स्कूल में सारी बातों का सामना किया और मैंने उनको बोला कि जो कुछ भी ये बातें फैलाई गई है मेरे विषय में गलत है, और जिस व्यक्ति ने वो बातें फैलाई थी परमेश्वर ने उसके मन में कार्य किया और उसने आके मुझसे माफ़ी मांगी And I forgave him. और मैंने उसको माफ़ कर दिया। And then again, my friends came back to me. और फिर से मेरे दोस्त मेरे साथ आ गए फिर But this से। time, I pray to God, God, I don't want to insult them. I don't want to remove them out of my life. You do that thing for me. और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि मैं उनको अपमानित करना नहीं चाहती, मेरे जीवन से बाहर उनको धकेलना नहीं चाहती, लेकिन आप मुझे उनसे अलग करो। And God worked. Those people are no longer in my life. और परमेश्वर ने कार्य किया और वो लोग अभी मेरे जीवन में नहीं And हैं I'm really happy. और मैं सच में खुश हूँ। Now I'm surrounded by some good people in church. I have made some friends in church. और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे कलीसिया के लोग मेरे इर्द गिर्द हैं और मैंने यहाँ पर कुछ दोस्त भी बनाए हैं। So in past 3 years, I have learned one thing. If Jesus is removing any person out of your life, हमें इतने पिछले 3 सालों में मैंने एक बात सीखी है कि अगर प्रभु किसी व्यक्ति को आपके जीवन से निकाल रहे हैं, there is a good reason and there is a better replacement for it. और वो उसके एक अच्छा कारण रहता है उसके पीछे, और उसकी जगह पर परमेश्वर एक अच्छे व्यक्ति को देगा। Now I just have one friend. अभी मेरे सिर्फ एक ही दोस्त है। We talk about studies, हम पढ़ाई के विषय में बातचीत करते हैं, Jesus. हम यीशु के विषय में बात करते हैं, We motivate each other हम एक दूसरे को उत्साहित करते हैं, and we bring out the better from each other. और जो अच्छा है अपने हमारे अंदर से अच्छा बाहर लाने के लिए हम एक दूसरे की सहायता करते हैं। So I just want to say, if you are thinking that person means the world to you and you won't be anything without them, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति है वही आपकी पूरी दुनिया है और उसके बगैर आप कुछ भी नहीं हो, trust me, God has 1,000,000,000 times better replacement than that. विश्वास करो कि परमेश्वर के पास उस व्यक्ति से भी बहुत अच्छा व्यक्ति आपके लिए है। Thank you.